Assalamu alaikum students. In last lecture we were discussing inventory valuation systems, and today we will see the numerical question, and we will solve in perpetual inventory valuation system, periodic inventory valuation system, and we will see how different cost flow assumptions like last in first in first out, moving average method and weighted average method differs among the two systems. Now this is a question which we are going to solve today, and we will apply all these cost flow assumptions on the very same question. So keep the question in mind. Let's see what the question is. Walmart Incorporation had the following transactions in its first month of operations. The beginning inventory on March 2nd, business purchases 2000 units 2000 units at the rate of $4 each unit. This is the price and this is a quantity. Price multiplied by quantity, the balance will be 8000 इन्वेंट्री परचेजेस में आपको नज़र आ रहा होगा $8000. बट बैलेंस में अगर आप यूनिट्स देखेंगे तो आपके पास 2000 यूनिट्स मौजूद हैं. अगर इन यूनिट्स की वैल्यू स्टडी करेंगे तो वो $8000 वैल्यू होगी उसकी. 15th March को you purchased 6000 units at the rate of 4.4. The price is increasing because we are currently living in an inflationary economy, and the prices of goods and services are increasing day by day. For the very same reason, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप जब भी परचेजेस करेंगे तो हर दफ़ा आपकी प्राइजेस में आप इंक्रीज देखेंगे. So now 6 plus 2, total number of units in the balance will be 8000 units. On March 19th, you receive a sale order, और सेल ऑर्डर में कितने यूनिट्स थे? 4000 यूनिट्स सोल्ड आउट होने का ऑर्डर आया. उन 8000 में से 4000 अगर आपके यूनिट सेल आउट हो जाएंगे तो रिमेनिंग यूनिट्स इन द बैलेंस विल बी 4000 यूनिट्स. On March 30th, business again purchased 2000 units at the cost of $4.75 each unit, and then again 4000 plus the new purchases. The total units uh, placed in the inventory of the business are equivalent to 6000 units. So this was the units flow. There are two purchase transactions, one beginning balance, one sold transaction. And let's calculate goods cost of goods that are available for sale now. Beginning inventory. The beginning balance 2000 units multiplied by 4. The value would be $8000. The purchases that are made in this accounting period are, you have made two purchase transactions, one on 15th of March and one on 30th of March. 6000 multiplied by 4.4, the dollar value will be 26,400. On March 30th, business purchased 2000 units, the dollar value will be 2000 multiplied by 4.75. P multiplied by Q, 4.75 multiplied by 2000, the resultant figure would be 9500. Add on these purchases plus the beginning inventory will give rise to goods available for sale. It means इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में वो गुड्स, वो इन्वेंट्री जो आपके पास मौजूद थी सेल होने के लिए, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसकी डॉलर अमाउंट बनती है 43,900. यहाँ तक सिस्टम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता. जब ये जो हमारे वैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं, पीरियोडिक हो या परपीचुअल, डिफरेंस तब आता है जब आपके पास आती हैं सेल की ट्रांजैक्शंस. तो सेल की ट्रांजैक्शन इसमें एक है, उस सेल के ट्रांजैक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इसी एक क्वेश्चन में, और हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं सीजीएस और एंडिंग इन्वेंट्री के. So now keep this figure in mind that the goods available for sale are equivalent to 43,900, and now we will assume certain different assumptions. First of all, the very first method, that is specific identification method. As its name implies, specific identification means the customer specifically identify that I need this product. मुझे सिर्फ यही प्रोडक्ट चाहिए. तो जब सेल आउट होने होते हैं यूनिट्स, तो आप वही यूनिट सेल आउट करते हैं जिसको कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहा होता है. आप अपनी मर्जी से उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते. Includes in cost of goods sold that cost of the specific item sold. It means CGS में वही cost जाएगी जो कि specifically identify की गई है by the customer. Used when handling a relatively small number of costly, easily distinguishable items. Example देती हूँ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को. हमारे पास डिफरेंट बुटीक्स होती हैं. बुटीक्स में ड्रेसेस डिस्प्ले पर हैं. ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बेसिकली उन बिजनेसेस में वर्कआउट करता है जहाँ पर आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, बट द आइटम्स आर वेरी मच कॉस्टली अगर आप पर यूनिट बेसिस पे देखें.
एंड आइटम्स आर वेरी डिस्टिंग्विशेबल. इट मीन्स डिस्प्ले में अगर आपके पास 10 सूट लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्राइडल वेयर्स हैं, आपके ब्राइडग्रूम वेयर्स हैं, तो उसमें कस्टमर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करता है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, और उसी की कॉस्ट को आप सीजीएस में ट्रांसफर कर देते हैं. रिमेनिंग आइटम्स आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े रहते हैं. इसकी एक और एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है. आप लोगों ने फ्रिज परचेज करना है, मल्टीपल कंपनीज हैं, उनकी फ्रिजेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं. तो आप कस्टमर खुद ही आइडेंटिफाई करता है दैट आई नीड दैट थिंग, और डेफिनेटली दीज आर कंसिडर्ड एज कॉस्टली आइटम्स. लेकिन इसके कंट्रास्ट में आप ग्रॉसरी स्टोर में जाके देखें, ब्रेड, अंडे, जैम, बिस्किट्स, ये लेस कॉस्टली और होमोजीनियस आइटम्स हैं. वहाँ पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वर्कआउट नहीं करेगी. वेन एवर यू टॉक अबाउट दैट आई नीड सुपर बिस्किट, तो कोई सा भी सुपर बिस्किट शॉपकीपर आपको उठा कर दे देगा और आप ले लेंगे, बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर. लेकिन जो हाई प्राइस आइटम्स होते हैं, जैसे आपके कर्टन्स की शॉप होती है, जहाँ से आप कर्टन्स हैं, आप लोगों का फर्नीचर शोरूम है, आपका कार शोरूम है, ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वर्कआउट करती है. So over here, when in specific identification works only in those businesses where the item cost of the item is extremely high and all items are heterogeneous in nature. It means every item is different from the other item. So इट मैचेस एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट एक्चुअल रेवेन्यूज. तो आपको पता होता है कि इस आइटम को कंपनी ने या मैंने कितने का लिया था. फॉर एग्जांपल एक हायर की फ्रिज है, मैरून कलर की है, उसके स्पेसिफिकेशंस भी हैं कि इतनी लेंथ है और इतनी विड्थ है, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पता होता है कि वो मैंने कितने की परचेज की थी. उसको आप थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल आउट करते हैं, तो आपको उसी वक्त एट द पॉइंट ऑफ सेल डिक्लेयर हो जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है इस प्रोडक्ट के ऊपर. So actual costs are being compared with the actual revenues. Whatever you being earned or you will charge from the customer is your revenue, and the cost that is the amount that you paid to the manufacturer for the very same product. Difference of this is your profit. Cost flow matches the physical flow of the goods, may allow a company to manipulate the net income as well. So this is a specific identification method. Now, how we'll look into the question. Colmart Incorporation's 6,000 units of inventory consist of 1,000 units from the March 2nd purchase, 3,000 from the March 15th purchase, and 2,000 from the March 30th purchase. Compute the amount of ending inventory at cost of goods sold. Now, अब उसने आपको जब आपका मंथ एंडिंग्स हुई हैं, महीना ख़त्म हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद बिजनेस ने फिजिकल काउंटडाउन किया अपनी इन्वेंट्री आइटम्स का. और फिजिकल काउंटडाउन ऑफ द इन्वेंट्री रिवील क्या कहता है कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स पड़े हैं, 6,000. उन 6,000 यूनिट्स में से वो बता रही हैं कि 1,000 यूनिट्स पड़े हैं मार्च 2nd की परचेज में से. तो ओके जी, हमने लिख लिया. एंडिंग इन्वेंट्री अब हमने कंप्यूट करनी है, क्योंकि उसने हमें कहा था कंप्यूट द एंडिंग इन्वेंट्री. तो एंडिंग इन्वेंट्री में हमें पता चल गया कि 1,000 यूनिट्स पड़े हैं मार्च 2nd वाली परचेज में से. उसकी यूनिट कॉस्ट हमें पता थी 4 पर यूनिट थी. 3,000 यूनिट्स पड़े हैं 15 मार्च की परचेज में से. तो 3,000 यूनिट्स फ्रॉम 15 मार्च, इसकी कॉस्ट आपको पता है 4 + 3. एंड देन 2,000 यूनिट्स पड़े हैं 30th मार्च की परचेज में से. क्योंकि ये इजीली डिस्टिंग्विशेबल आइटम्स होते हैं, तो आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाले इतने पड़े हैं, ये वाली चीज़ इतनी पड़ी है, राइट. अब इसकी यूनिट कॉस्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. ये देख रहे होंगे आप लोग, मार्च 2nd की परचेज 4 पर यूनिट थी, 15th मार्च पर यूनिट कॉस्ट वाज 4.4 एंड 30th मार्च पर यूनिट कॉस्ट वाज 4.75. सो उनकी रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट डिटर्मिन कर लेंगे. इट मीन्स कि एंडिंग इन्वेंट्री मंथ एंडिंग या ईयर एंडिंग ऑपरेशन अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर 26,700 की पड़ी है. अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपको ऑलरेडी आपने लास्ट स्लाइड में कंप्यूट किया था. गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वाज 43,900. नाउ वी डिडक्ट दिस एंडिंग इन्वेंट्री एंड वी विल कम टू सीजीएस. हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्रीज में से माइनस की, तो हमें पता चल गया कि इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने गुड्स जिस कॉस्ट के सेल आउट की हैं वो तकरीबन 17,200 रुपये की बनती हैं. तो $17,200 is the CGS. Now this CGS will become the part of the income statement, and this ending inventory balance 26,700 will become the part of the balance sheet. Now the very next method, that is average cost method. Let's see what this method states, and then we will look into the
Numerical question of average cost method. Prices items in the inventory on the basis of the average cost of all the similar goods available during the period. Now, average cost ones आप उस वक्त apply करते हैं जब all the items are homogeneous in nature and they are very less costly items and they are homogeneous, right? Uh, no special feature attached with a specific product, not as subject to income manipulation. Measuring a specific physical flow of inventory is often impossible. Now, this is a question of weighted average method. Over here, you can see this was our original question. Like first three rows was our original question. Beginning inventory was 2,000 at the cost of 4, the cost of 8,000, 26,400, 9,500. The total goods that were available for sale was 10,000 units with a cost of 43,900. अब इसमें अगर ये सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं और इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसके फिजिकल फ्लो को कि कौन सी पहले जा रही है कौन सी बाद में जा रही है, लेट्स में जैसे मैंने सुपर बिस्किट्स की एग्जांपल दी या मैंने आपको अंडों की एग्जांपल ले लें, आप आजकल एग्स का सीज़न है तो उसमें आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये एग मुझे पीछे से कितने के मिले थे, 4 रुपये का एक अंडा था, 14 रुपये का अंडा था, 20 रुपये का अंडा था, राइट? सो ऑल एग्स आर सिमिलर, ऑल एग्स आर सेम। तो उसमें आप क्या करते हैं कि फिर वेटेड एवरेज मेथड लगा लेते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, आपके पास आ जाती है पर यूनिट कॉस्ट। सो मैंने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करके पर यूनिट कॉस्ट निकाली। इट मीन्स कि इस सारी कॉस्ट में से अब मैं हर यूनिट को कॉस्ट अप्लाई करूँगी $4.39। नाउ अब मेरे पास 10,000 यूनिट्स में से महीने के एंड पर एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 6,000 यूनिट्स। सो 6,000 यूनिट्स multiply by 4.39, I will determine that my ending inventory balance is equivalent to 26,340 पर यूनिट। इट मीन्स कि मैंने हर यूनिट के लिए स्पेसिफिक पर यूनिट कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत महसूस नहीं की क्योंकि सारे यूनिट्स ऑलमोस्ट एक जैसे थे। सो दैट्स वाई मैंने एक सिंपल कॉस्ट एक एवेलुएट कर ली और वही कॉस्ट सब यूनिट्स पे अप्लाई कर दी। सो इन 10,000 यूनिट्स में से 6,000 यूनिट्स मेरे पास अभी भी पड़े हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 26,340। इस 43,900 में से ये 26,340 माइनस कर दें, आपके पास सी जी एस आ जाएगी। दैट सी जी एस इज 17,560, राइट? अब आप याद रखिएगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में आपकी ये सी जी एस डिफरेंट आई थी, वेटेड एवरेज मेथड में आपकी ये सी जी एस डिफरेंट आएगी, लाइफ ऑफ फाइफो मेथड के अंदर भी ये डिफरेंट आती हैं। सिर्फ यहाँ तक गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तक आपका क्वेश्चन सेम बनता है, अदरवाइज इन दो फिगर्स में हमेशा डिफरेंस आता जाएगा। नेक्स्ट मेथड में देखिएगा फ्रेंड्स, this is a moving average method. Weighted average method works when your business is on periodic inventory valuation system. मैं रिपीट कर रही हूँ, weighted average method will work when the business is on periodic inventory valuation system. तो periodic inventory valuation system में क्या होगा कि आप मंथ एंडिंग पर या अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर CGS और एंडिंग इन्वेंट्री को डिटर्मन कर लेंगे। बट इन अ perpetual inventory valuation system, every time when units are being purchased and they are being added in the inventory account, the new per unit cost will appear, and that per unit cost will move to the next transaction whenever the transactions are made for purchase and sale. जब भी यूनिट्स परचेज होंगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब यूनिट सेल आउट होंगे तो उसी लास्ट जो आपने डिराइव की हुई पर यूनिट कॉस्ट है उस पर आप सेल आउट करेंगे। पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिएगा, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूंगी इस कॉन्सेप्ट को। March 2nd, that was our original question. On March 2nd, business purchased 2,000 units at the cost of 8,000. इनको आप as it is report कर दें that 2,000 units at the rate of 4, total cost will be 8,000. Now, when on 15th March, business purchased some more units, then what you have to do, you have to calculate per unit cost. The per unit cost will change at each step whenever business purchase new inventory. How you will compute that? The formula will remain the same as well in the last slide. What you have to do, add units in the units. 2,000 units beginning balance से, 6,000 units आपकी न्यू परचेज है, इन दोनों को ऐड ऑन कर दें तो यूनिट्स कितने हो गए? 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉस्ट में कॉस्ट को ऐड कर दें। 8,000 रुपये आपने पहले खर्च किए थे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए और 26,400 आपने अब खर्च किए हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उनकी? 34,400। Now the formula would be very same, total cost
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 34,400 डिवाइडेड बाय 8,000, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 4.3। अब आप ये देखिएगा कि आपने परचेज किए थे यूनिट्स 4.4 पर, लेकिन आपकी मूविंग एवरेज मेथड में आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 4.3। अब इसके बाद जब भी यूनिट्स परचेज या सेल होंगे, आपने इन कॉस्ट को भूल जाना है, राइट। ये जो न्यू मूविंग एवरेज कॉस्ट आई है, इसके ऊपर हम यूनिट्स परचेज या सोल्ड करेंगे। नाउ मार्च 19 को आपके पास सेल का ऑर्डर आया था, पर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जैसे ही सेल की ट्रांजैक्शन होती है हम अपने अकाउंट्स को फ़ौरन अपडेट करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर सेल की ट्रांजैक्शन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। 4,000 यूनिट्स सेल आउट होने का ऑर्डर आया था, उस पर कौन सी कॉस्ट लगेगी, 4.3 से आपने उसको CGS में कन्वर्ट कर देना है। सो 4.3 द लास्ट अपडेटेड जो भी मूविंग एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है, उससे उसको मल्टीप्लाई करें, योर CGS वुड बी 17,200। अब इन 8,000 में से 4,000 यूनिट्स बिक गए हैं, तो बाकी कितने पड़े हैं, 4,000 यूनिट्स पड़े हैं। इन 34,400 में से 17,200 CGS में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना पड़ा है, 17,200। नाउ उसके बाद 30th मार्च को अगेन वी हैव अ परचेज ट्रांजैक्शन ऑफ 2,000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 4.75 ईच यूनिट विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 9,500। नाउ हाउ वी विल कंप्यूट द बैलेंस, again do the same thing, add units into units. So 4,000 units were in balance, 2,000 newly purchased units, total units will be 6,000 units, and then add total cost in the total cost, 17,200 plus 9,500 will gives rise to total cost. Again, how you will determine the per unit cost, total cost divided by total units will give rise to new moving average cost, and that would be 4.45 rather than 4.75. नाउ जब भी आप ये यूनिट सेल आउट करने हैं, नेक्स्ट 4.45 पे सेल आउट करेंगे, अगर आप परचेज करेंगे तो आपकी फिर भी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करती रहेगी। दिस इज हाउ in a perpetual inventory valuation system, the per unit cost is continuously moving, it continuously increasing whenever the business purchase new units। और इसके अंदर आपकी CGS बन गई है 17,200 और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी बन गई है 26,700। अगर कोई मुझसे 15 मार्च को एंडिंग इन्वेंट्री पूछता तो मैं एंडिंग इन्वेंट्री बताती 34,400। 19 मार्च को एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 17,200। 30 मार्च को एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 26,700। सो परपीचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम में जैसे हमने थ्योरेटिकली इसको डिस्कस किया था, इट्स अ वेरी अपडेटेड सिस्टम। एट द टाइम एट ईच ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑफ सोइल इसको अपडेट किया जाता है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इसको जब भी इसका एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस देखेंगे वो आपको अपडेटेड ही मिलेगा। The next second last assumption is first in first out method. In the last lecture we discussed first in first out method as whatever the oldest unit that comes in first in, जो पहले हमारे पास इन्वेंट्री में आया है, जब भी कोई चीज़ सेल होने का ऑर्डर आएगा वही पहले सेल आउट होगा। फर्स्ट इन would be first out. So the oldest units cost moves into the income statement as it becomes a part of cost of goods sold, and the newest units will always remains in ending inventory. That will become the part of the balance sheet. First in first out method works in the industry where the goods are perishable. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेकरी आइटम्स की, सब्जी फल की दुकान, इन सब में ग्रॉस ये जो ग्रीन मार्केट इन सब में भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर आपकी एक शॉप है सब्जी की, दूध दही की शॉप है आपकी, वो तमाम चीज़ें जो ख़राब हो सकती हैं, राइट। तो उसमें ऐसा ही होता है कि जो ओल्डर यूनिट बना है ना, जो चीज़ पहले बनी है वो आप पहले सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो चीज़ ख़राब होके फर्म को उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, ऑनर को उसकी कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर दो दूध दही की दुकान है, केक है, बेकरीज हैं, दाता एंड ऑल अदर बेकरीज, तो इन सब में ऐसा ही होगा, द ओल्डर यूनिट विल सेल आउट फर्स्ट। So prices items in the inventory on the basis of the average cost of all the similar goods available during the period assumes goods are used in the order in which they are being purchased. You will sell out the goods in the order in the very same pattern in which the goods are being purchased by the business. As your ending inventory consists of the very newly purchased items, so the it is more close proximity exists with the close market values.
एंड इट फेल्स टू मैच द करंट कॉस्ट अगेंस्ट द करंट रेवेन्यूज, बिकॉज जो रेवेन्यू के साथ जो कॉस्ट कंपेयर हो रही होती है वो ओल्डर कॉस्ट होती है. नाउ दिस इज द assumption under the periodic inventory valuation system. It will happen. How you will compute that? Ending March 30th. Okay. यहाँ तक स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 43,900 तक आप लोगों को कैलकुलेट करना आता था कि गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया. अपनी फर्स्ट न्यूमेरिकल स्लाइड में हमने इसको कैलकुलेट किया. अब एंडिंग इन्वेंट्री हम कैसे कंप्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 6,000 यूनिट्स को सेल करना है. जो क्वेश्चन हम शुरू में लेके चल रहे हैं उसमें 6,000 यूनिट सेल आउट हुए हैं. इट मींस 10,000 यूनिट्स हमारे पास टोटल अवेलेबल थे, 6,000 हमने बेचने थे, 4,000 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं. अब इसमें जो 6,000 यूनिट्स बिकेंगे वो कौन से यूनिट्स होंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले इन फर्स्ट हुए हैं वही पहले बाहर जाएंगे. ये देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने वैसे ये मार्च 30 लिखा हुआ है, ये मार्च 2 है. अगर मैं इसको इरेज कर सकूं, इफ द स्लाइड इज इरेजेबल, ये काइंडली इसको एडिट कर लीजिएगा. ये मेरे पास से एडिट नहीं हो रहा. एडिट ऑल टेक्स्ट इफ इट इज पॉसिबल. नहीं हो रहा स्टूडेंट्स. ये मार्च 2 की ट्रांजैक्शन है. काइंडली इसको यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा. तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ था? जो मार्च 2 की ट्रांजैक्शन थी. मार्च 2 पहले आएगी. मार्च 2 में 2,000 यूनिट्स आपने बाय किए थे, वो 2,000 यूनिट्स आप सेल आउट कर देंगे. 2,000 यूनिट्स बिकने के बाद ऑर्डर कितना सेल आउट होने का था? ये मार्च 15 के आपके पास यूनिट्स पड़े हैं 4,000 यूनिट्स. इसकी टोटल कॉस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं. एक सेकेंड स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस वुड बी मार्च 2. 2,000 यूनिट्स आपने सेल किया, उसकी पर यूनिट कॉस्ट आप लोगों को याद होगी. नाउ स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम पे चल रहा था, इसमें अब आपको थोड़ा सा इस पे अपने कॉपीज के ऊपर राइटिंग कीजिएगा. इसकी थोड़ा सा वर्कआउट आप लोगों को करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर जो पहले यूनिट्स एंटर हुए थे उन्हीं पहले यूनिट्स में सेल आउट होना था. तो अब जरा एक दफ़ा आप लोग अपनी CGS कंप्यूट कीजिएगा. पहले CGS में देखिएगा स्टूडेंट्स, 2,000 यूनिट्स तो आपने मार्च 2 में खरीदे थे एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट. वो यूनिट सेल आउट हो गए. टोटल 4,000 यूनिट्स बेचने हैं ना. 2,000 यूनिट्स वो बेचे आपने, और 15 मार्च को आपने टोटल 6,000 यूनिट्स परचेज किए थे ओरिजिनल क्वेश्चन में. अगर मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखा दूं यहाँ पर. ओके, 27 स्लाइड पे हम लोगों ने वापस आना है. ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ये देखें. इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, अब मेथड है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये आपका फर्स्ट इन था, राइट. ये फर्स्ट इन हुए थे हमारे बिजनेस के अंदर, तो इन्होंने फर्स्ट आउट होना है. लाइक आपने 4,000 यूनिट्स बेचने हैं ना, तो 2,000 यूनिट्स आपने ये बेच दिए, और इस 6,000 में से 2,000 यूनिट्स बिक गए, राइट. इस 6,000 में से 2,000 यूनिट्स बिक गए. तो 2,000 ये और 2,000 ये, टोटल 4,000 यूनिट्स बिक गए. अब आप लोग अपनी एंडिंग इन्वेंट्री देखें. एंडिंग इन्वेंट्री में इस 6 में से 2,000 बिक गए हैं, बाकी पड़े हैं 4,000 यूनिट्स. तो हम कहेंगे एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 4,000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 4.4 पर यूनिट, और 2,000 यूनिट्स पड़े होंगे 4.75 के. अब ये डेट्स और कॉस्ट नोट कर लें कि 15 मार्च को 4,000 यूनिट्स पड़े हैं 4.4 कॉस्ट के, और 30 मार्च की 2,000 यूनिट्स पड़े हैं 4.75 वाले. ये आप लोगों की एंडिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, और बाकी कॉस्ट आपकी CGS में ट्रांसफर हो जाएगी. ये मैं आपको स्लाइड मैक्सिमाइज करके दिखा देती हूँ. ये देख लें. तो अब यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री में आपको नजर आ रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री में जो बच्चे पड़े हैं आपके पास, 2,000 यूनिट्स पड़े हैं 4.75 कॉस्ट वाले, 4,000 यूनिट्स पड़े हैं 4.4 कॉस्ट वाले. आपके पास टोटल एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी बन गई है? 27,100. गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से इस कॉस्ट को माइनस कर दें, आपके पास CGS आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 16,800. तो इस केस में आप लोगों ने देखा कि आपकी CGS मजीद कम हो गई है. अगर अब यही क्वेश्चन हो और लाइफो मेथड हो लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने
डेट वाइज रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ऐसा नहीं होता कि आप मंथ एंडिंग पे सीजीएस कंप्यूट कर रहे हैं, आप साथ साथ आपकी सीजीएस कंप्यूट होती रहती है जैसे जैसे आपकी सेल की ट्रांजेक्शन होती है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, 2000 यूनिट्स बिगनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 4, 8000 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आपने यूनिट्स परचेज किए हैं, नेक्स्ट यूनिट जब आपने परचेज किए हैं 15 मार्च को, 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.4, टोटल कॉस्ट 26,400, इसको आपने बैलेंस में कैसे लिखना है, पहले आपने मार्च सेकेंड वाले यूनिट्स लिखने हैं और उसके बाद आप लोगों ने मार्च 15 वाले यूनिट्स लिखने हैं। सो अब ये बैलेंस में ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट, सॉरी ये जो आपकी ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके बैलेंस में 2000 यूनिट्स पड़े हैं 4 कॉस्ट वाले, 6000 यूनिट्स पड़े हैं 4.4 कॉस्ट वाले, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 34,400। अब आपने मार्च 19 को कितने यूनिट सेल आउट करने हैं, 4000 यूनिट सेल आउट करने हैं। अब इन 4000 में से अब आपने मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले बिकेगा। सो पहले कौन से आए हैं, पहले ये 2000 यूनिट्स आए हैं, तो इन 2000 यूनिट्स को सेल आउट करेंगे और इन 6000 में से अगेन 2000 यूनिट सेल आउट हो जाएंगे। ये देखिएगा 2000 यूनिट्स बिके हैं 4 कॉस्ट वाले, ये देखें 2000 यूनिट्स बिके हैं 4 कॉस्ट वाले और इन 6000 में से 2000 यूनिट्स बिक गए हैं 4.4 कॉस्ट वाले। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद टोटल कॉस्ट डिटरमिन कर लें कि सीजीएस में कितनी कॉस्ट जा रही है। तो सीजीएस में जा रही है 16,800। अब रिमेनिंग बैलेंस कंप्यूट करते हैं, ये 2000, ये वाले 2000 यूनिट्स तो बिक गए। अब एंडिंग इन्वेंट्री में इन 6000 में से 2000 बिक गए हैं, बाकी 4000 यूनिट्स पड़े हैं एट द रेट ऑफ 4.4, तो 4000 यूनिट्स पड़े हैं 4.4 कॉस्ट वाले, टोटल यूनिट्स कितने बच गए 4000 यूनिट्स और उनकी कॉस्ट कितनी है 17,600। अब आपने मजीद परचेज किए 2000 यूनिट्स, इसको इन्वेंट्री में आपने कैसे लिखना है, पहले 4000 यूनिट्स ये लिखें और उसके बाद 2000 यूनिट्स ये वाले लिखें, सेपरेटली उनको रिकॉर्ड करना है क्योंकि उनकी पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है, इसलिए आप उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। एंड द बैलेंस ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वुड बी 27,100। नाउ लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास, लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड, पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम में देखिएगा पीरियोडिक में आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम में स्टूडेंट्स आप लोगों ने लास्ट इन जो आखिर में आया है, द न्यूएस्ट यूनिट जो आया है आपके स्टोर रूम में, वो फर्स्ट आउट हो जाएगा जब भी कस्टमर ऑर्डर आएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स, ये उस बिजनेस में वर्कआउट करता है जिस बिजनेस को फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला यूनिट सेल आउट हो या दूसरा यूनिट सेल आउट हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये यूनिट्स हमारे पास एक्सपायर नहीं होंगे, राइट। तो इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे सीमेंट बजरी का बिजनेस हो गया, तो उसमें आप लोगों के यूनिट्स ख़राब नहीं होते, तो फिर जो सामने सामने चीज़ पड़ी होती है आप वही कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं। और सामने चीज़ कौन सी पड़ी है, जो न्यूएस्ट इन्वेंट्री स्टॉक में आई है आपके पास, तो लास्ट इन वुड बी फर्स्ट आउट। सो इसकी एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी कि आपके एंडिंग इन्वेंट्री में 2000 यूनिट्स पड़े हैं 4 पर यूनिट कॉस्ट वाले, जिनकी कॉस्ट कितनी है 8000। मार्च 15 कॉस्ट में से 4000 यूनिट्स पड़े हैं 4.4 कॉस्ट के, 17,600 उनकी टोटल कॉस्ट है, तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई 25,600। ये माइनस कर दें गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से, आपके पास सीजीएस आ जाएगी 18,300। लेकिन अगर यही बिजनेस होता हमारा परपीचुअल पर और मेथड वही होता लाइफ हो, तो हम इसको कैसे वर्कआउट करते हैं, बैलेंस जो हमारा 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 8000, इसको हम एज इट इज़ राइट डाउन कर लेते हैं। जब हमने यूनिट्स कुछ न्यू परचेज किए हैं तो हम इन दोनों को सेपरेटली राइट डाउन करेंगे क्योंकि दोनों की पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है। सो वी विल फर्स्ट राइट 2000 into 4, देन वी विल राइट 6000 into 4.4 पर यूनिट, ताकि उन दोनों की पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है, हमें याद हो कि हमने पहले कौन सा खरीदा है और बाद में कौन सा खरीदा है। जब यूनिट सेल आउट होने का ऑर्डर आएगा 4000 यूनिट्स आपने बेचने हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये लास्ट इन है, लास्ट इन है, यही फर्स्ट आउट होगा। तो इसमें से 4000 यूनिट्स आपने बेच दी हैं कितनी कॉस्ट के, इसमें से 4000 यूनिट बेच दिए आपने 4.4 कॉस्ट पे सेल आउट कर दिए हैं, तो आपकी सीजीएस कितनी हो गई है 17,600। नाउ इट्स द टाइम टू राइट डाउन द एंडिंग इन्वेंट्री। 2000 यूनिट्स ये एज इट इज आ जाएंगे 4 कॉस्ट से, और 6000 में से 4000 बिक गए हैं, बाकी आ जाएंगे 2000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 4.4। ये आप लोगों की एंडिंग इन्वेंट्री। अगर आप मार्च 19 में कोई आपसे पूछेगा तो 16,800 की आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी है, लेकिन मार्च 30 को आपने मजीद 2000 यूनिट्स परचेज कर लिए हैं। अब आप इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, ये एज इट इज़ 2000 एट द 4 एज इट इज़, 2000 एट द रेट ऑफ 4.4 एज इट इज़, और उसमें मजीद आप ऐड कर लेंगे 2000 एट द रेट ऑफ 4.75, योर टोटल एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट वुड बी 26,300।
So this is how these cost flow assumptions like last in first out, moving average, weighted average, and specific identification method differs in periodic and perpetual inventory valuation system. Hope you can understand the concept. Still, if you face any kind of problem, do put the question on your respective class WhatsApp groups.